Okay students, let us proceed to discuss about our next property of definite integral, that is property number 5th. And this property can be written as integration from a to b of f of x dx is equal to integration from a to b of f of a plus b minus x dx. Okay, clear? Let us prove this result. Okay students, here integral of f of x dx, okay, lower limit is a and upper limit is b. In right hand side there is f of a plus b minus x, that is x is subtracted from addition of lower limit and upper limit of the integral a plus b minus x dx. Okay, let us prove this result taking right hand side. Taking right hand side of the integration, that is a to b, integral from a to b of f of a plus b minus x dx. Let a plus b minus x is equal to t. A plus b minus x is equal to t using substitution method of integration, that is a plus b minus x को t assume किया गया है. Okay, taking derivative of both the sides with respect to x, okay, we get minus 1 is equal to dt by dx. Clear? Taking derivative of both sides with respect to x, we get derivative of a is 0, derivative of b is 0, derivative of x is minus 1, यहाँ negative है, and derivative of t with respect to x is dt by dx. So dx is equal to minus 1 dt, that is minus dt. So dx is equal to minus dt. Okay, और हमें करना क्या होता है? We have to change limits also. Let us change the limits when x tending towards a. When x tending towards a, then t is equal to a plus b minus x. X means a. Okay, जब x a की तरफ जाता है, so let us find the value of t. t का वैल्यू क्या होगा? ओके, समझ में आ रहा है? जब when x tending towards a, then we have to find t, the value of t. तो आपको इसमें जो आपने assume किया है कि t is equal to a plus b minus x, इसी में आपको x is equal to a substitute कर देना है. ओके, to finding the limit of t. तो देखो a और a तो कट गया, बचा क्या? b. Means when x tending towards a, then t tending towards b. Okay, ये तो रहा आपका lower limit का conversion. Okay, let us change the upper limit. And when x tending towards b, then let us find the limit of t. Okay, then t is equal to a plus b minus x. X means b. x को आपको क्या रखना है? Put the value of x, that is b. देखो b और b कट गया, बचा क्या? a. ओके, कहने का मतलब है when x tending towards b, then t tending towards a. Okay, so when you changing the function in the form of t, then you have to change the limits of integral. That is, when x tending towards a, then t tending towards b, and when x tending towards b, then t tending towards a. Okay, और dx किस में चेंज हो गया? dx converted in the form of dt, that is negative dt. Okay, let us find the integral, that is, देखो अभी भी आपने चेंज किया है t टेंडिंग टूवर्ड्स b और t टेंडिंग टूवर्ड्स a, तो a तो b में हो गया,
लोअर लिमिट इज b, अपर लिमिट इज a, और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स को आपने क्या एज्यूम किया है, t एज्यूम किया है, dx क्या है, dx इज माइनस dt एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस को मैंने इंटीग्रल के बाहर रख दिया, दैट इज -1 b टू a f ऑफ t dt and this one is equal to, using your second property, that is integration from a to b of f of x dx is equivalent to minus integration from b to a। तो जब आप लिमिट्स को चेंज करोगे तो आपका a नेगेटिव हो जाता है, और जो नेगेटिव हुआ और a जो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। ओके, ये बन गया आपको a टू b ऑफ f ऑफ t dt। आ गया समझ में? आप जब लिमिट को चेंज करते हो लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, देन द इंटीग्रल बिकम्स नेगेटिव। तो ओ वाला नेगेटिव, ए वाला नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और यूजिंग योर प्रॉपर्टी कि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। फंक्शन जिस अभी फंक्शन किस में है, t में है, आप इसको x में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटीग्रल के वैल्यूज पे, इंटीग्रेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दिस वन इज इक्वल टू a टू b ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम योर सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड थर्ड जो भी है। तो आप t को x में चेंज कर सकते हो। ओके, क्लियर? फंक्शन के वेरिएबल पे, फंक्शन किस में है, t में है, x में है, p में है, थीटा में है, इंटीग्रल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, सो यू कैन राइट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ t dt इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x dx। और यह कौन है? दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड लिया था, लेकर के आपने लेफ्ट हैंड साइड शो कर दिया। So right hand side is equivalent to left hand side. In this way you can say that integral from a to b of f of x dx is equal to integration from a to b of f of a plus b minus x dx. Okay, so left hand side equal to right hand side. Okay, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा कॉपी कीजिए। Let us find the integral of साइन स्क्वायर एक्स फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। पहले नोट कीजिए। सो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हियर, इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेट दिस वन इज इक्वल टू आई। इसको आप आई कंसिडर कीजिए। क्यों आई कंसिडर कर रहे हैं अभी आपको मालूम चलेगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, दैट इज a टू b। हियर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ a प्लस p माइनस x। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ऑफ x। x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a प्लस b, दैट इज a मीन्स पाई बाई 6 और b इज पाई बाई 3 माइनस x dx। x इज सब्ट्रैक्टेड, x को सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से, किसमें से, a प्लस b में से। a इज पाई बाई 6 और b क्या है, पाई बाई 3 है। दोनों को प्लस करो और माइनस से, और माइनस करो x, माइनस x। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ऑफ साइन स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, दैट इज 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर 6 करना है, हमें डिनोमिनेटर को 6 करना है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई बाई 6, दैट इज 3 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 2। यहाँ पे हो गया पाई बाई 2 माइनस x dx, एंड दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x टू द होल स्क्वायर dx। अब ऐसा लिख सकते हो ना, दैट इज
जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा टू द होल स्क्वायर, मतलब उसको आप ऐसा नहीं होता कि साइन थीटा टू द होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। थीटा तो उसका एंगल है, ओके, थीटा इज द एंगल ऑफ साइनसॉइडल, साइन का एंगल है, दैट इज, आया समझ में, साइन थीटा ऐसा ब्रैकेट में स्क्वायर कर दो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई फर्क आ गया समझ में। एंड दिस वन इज इक्वल टू π/6 टू π/3, और यहाँ पे वी नो दैट साइन π/2 माइनस थीटा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये बन गया कॉस ऑफ थीटा, थीटा मीन्स एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू π/6 टू π/3, यहाँ बन गया कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो ये आपका आई ही चलता चला आ रहा है, आई की वैल्यू आपने क्या कंसिडर किया था, इतना, आई को आपने यहाँ पे कंसिडर किया था, आई इज इक्वल टू π/6 टू π/3, वो चलता चला जा रहा है, और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आया, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये मान लीजिए फर्स्ट था, और अभी यहाँ जहाँ आप पहुँचे हो इसको आप 2 एज्यूम कर लीजिए, लास्ट उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम किया। सो ए भी आई का वैल्यू है, ए भी आई का वैल्यू है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को आप जब आप ऐड करोगे तो इधर क्या मिलेगा आपको, 2i, आई प्लस आई 2i, और यहाँ पे देखो लोअर लिमिट क्या है, π/6 टू π/3 है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स था, ओके, और यहाँ पे क्या है, ठीक है लिख देता हूँ मैं, dx प्लस π/6 टू π/3 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx, मीन्स ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो इसे आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज π/6 टू π/3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अभी यही तो बोला था मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ समेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फंक्शंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, प्लस या माइनस में ये एप्लीकेबल है। देखो यहाँ प्लस है तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे हुआ था, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यहाँ पे हुआ था, तो आपने इसको कंबाइंड कर दिया, और ये टोटल एक इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। दिस वन इज इक्वल टू π/6 टू π/3 ऑफ 1 dx, ठीक है। और ये देखो कितना हुआ, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में x, और यहाँ पे कितना हुआ π/6 टू π/3, दिस वन इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, आ गया समझ में। x इज रिप्लेस्ड बाय अपर लिमिट माइनस x इज रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट, दैट इज π/3 माइनस π/6, ठीक है, क्लियर ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, और 2 में से पाई सब्ट्रैक्ट हुआ तो π/6, ओके। सो 2i इज इक्वल टू π/6, सो i इज इक्वल टू कितना, π/6 इंटू 2, π/6 डिवाइडिंग बाई 2, 6 इंटू 6 दैट इज π/12, सो i इज इक्वल टू π/12। ये रहा है आपका लास्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5th, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b of f of x dx is equal to integral from a to b of f of a plus b minus x dx, ठीक है। तो a इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किया। Okay students, let us find the definition, let us find the proof of our property number 6, that is written as integral from 0 to a of f of x dx
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a of f of x dx is equivalent to integration from 0 to a of f of a minus x dx. देखिए अभी अभी हमने जो सीखा था, we have discussed as a to b of f of x dx is equal to a to b of f of a plus b minus x dx. वही तो है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, a to b, यहाँ पे क्या है 0 to a, मीन्स a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू a. दोनों को प्लस करना होता था, a प्लस बी माइनस एक्स करना पड़ता था. वही चीज़ यहाँ आपने प्लस किया, 0 to a प्लस 0 प्लस a क्या होता है, a ही तो होता है, a माइनस एक्स डी एक्स. सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे गिवन क्या है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a. लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज a, और a प्लस 0 दैट इज a. सेम टू सेम वही है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6. तो आइए इसको प्रूव करते हैं. लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. दैट इज लेट, हमने राइट हैंड साइड लिया यहाँ पे. राइट हैंड साइड क्या था, 0 to a ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स dx. राइट हैंड साइड ले लिया. अब हमें इसको प्रूव करना है कुछ, मतलब फाइंड, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो लेट a माइनस एक्स को आपने t कंसिडर किया, ठीक है. तो टेकिंग डेरिवेटिव दैट इज -1 इज इक्वल टू dt बाई dx, पता है आपको. सो dx इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 dt. सो dx इज इक्वल टू -dt. ये तो आपने क्या किया, पूरे जो फंक्शन x में था उसको t में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें क्या करना पड़ता है, dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो इसलिए आपने क्या किया, टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपको क्या मिल गया, dx इन द फॉर्म ऑफ dt, दैट इज dx इज इक्वल टू -dt मिला. अब हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ता है इन डेफिनेट इंटीग्रल. इनडेफिनेट में आपको इतना ही करना पड़ता था. अभी डेफिनेट में क्या करना है, यू हैव टू चेंज योर लिमिट्स अकॉर्डिंग टू योर सब्स्टिट्यूशन. ओके, लेट अस चेंज द लिमिट. यहाँ क्या लिखते हो आप, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, then t is equal to a minus x means 0. t is equal to a minus x कहाँ जा रहा है, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0. तो आपको x को 0 से रिप्लेस करना है. देन t टेंडिंग टूवर्ड्स a, देखो मिल गया. when x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 then t टेंडिंग टूवर्ड्स a, एंड when x टेंडिंग टूवर्ड्स a, जब x a की तरफ जाता है तो यू हैव टू फाइंड t इज इक्वल टू a माइनस a, x मीन्स a, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो t टेंडिंग टूवर्ड्स 0. ये तो रहा है आपका लिमिट्स का कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू योर सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो आई, ये जो राइट हैंड साइड है इंटीग्रल है, अभी 0 किस में चेंज हो गया, a में, ठीक है. a किस में चेंज हो गया, 0 में. फंक्शन किस में चेंज हो गया, t में. a माइनस एक्स को आपने क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था. dx इज माइनस dt एंड दिस वन इज इक्वल टू माइनस a to 0 ऑफ f ऑफ t dt, ठीक है. अब जब आप लिमिट्स को चेंज करते हो तो आपका इंटीग्रल नेगेटिव हो जाता है. ओके, when you changing your limits then your integral becomes negative. तो o नेगेटिव और a नेगेटिव पॉजिटिव बन गया. दैट इज 0 to a ऑफ f ऑफ t dt. और आपके पास प्रॉपर्टी है, आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो. दैट इज, अभी ये फंक्शन किस में है, ये फंक्शन t में है और यहाँ पे dt है. तो आप वेरिएबल्स को कभी भी चेंज कर सकते हो. दैट इज 0 to a ऑफ f ऑफ x dx. और इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f ऑफ x dx है क्या, दिस इज योर
left hand side. Okay, so in this way you get left hand side equal to right hand side. Okay. Okay students, then we have to find the integration from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of x using this property, that is 0 to a of f of x dx is equal to integral from 0 to a f of a minus x dx. So let this one is equal to I. Okay, so I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of pi by 4 minus x dx. Okay, 0 to pi by 4 of x dx. ठीक है, सो हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया, दैट इज 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of x, that is log of 1 plus tan x means pi by 4 minus x. This one is written as 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of a plus b, that is tan of a, that is tan of pi by 4 minus tan of x dividing by 1 plus tan of pi by 4 into tan of x और ये रहा dx. ठीक है, tan of a plus b, tan of a plus tan of b upon 1 minus tan a into tan of b. This one is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 is 1 minus tan of x dividing by 1 plus tan pi by 4 1 into tan x tan of x dx. Okay, this one is equal to 0 to pi by 4 log of, समझ रहे हो ना, tan of a plus b की का फार्मूला आपको आना चाहिए, tan of a minus b, tan of a minus tan of b dividing by 1 plus tan a into tan of b. देखो 1 means 1 upon 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 plus tan of x. ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया, दैट इज 1 plus tan of x plus 1 into 1 minus tan of x dividing by a into b 1 plus tan of x और ये रहा dx. Tan x and tan x get cancelled, we have 0 to pi by 4 log of 1 plus 1 2 upon 1 plus tan of x dx. ठीक है, तो ये तो रहा आपका I. देखो I चलता चला आ रहा है, दिस वन इज इक्वल टू I. सो लेट दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर second equation. Okay, so equation 1, that is I is equal to integral from 0 to pi by 4 of log of 1 plus tan of x, और I जो सेकेंड इक्वेशन है वो किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज 0 to pi by 4 log of 1 plus. So equation number 2 is integral from 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus tan x dx. Tan x get cancelled, 1 plus 1 2. So adding 1 and 2 on adding 1 and 2 we get I plus I, that is 2I is equal to 0 to pi by 4 of log of 1 plus tan of x. Okay, this one is your first, and the second one is log of, एक मिनट इसको, ठीक है, इसको ऐसा मत कीजिए, dx, that is log of 1 plus tan of x plus log of 2 upon 1 plus tan of x dx. ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू 0 to pi by 4 log of m plus log of n, that is log of m into n. m means 1 plus tan of x into n means 2 upon
1 plus tan of x dx. Log of m plus log of n, log of m into n. So this 1 plus tan x, 1 plus tan x get cancelled. We have 0 to pi by 4 log of 2, okay, dx, and this one is equal to log of 2 integration of 1, 0 to pi by 4 of 1 dx. This is equal to log of 2, 1 integration of 1, that is x 0 to pi by 4. This is equal to pi by 4 minus 0 into log of 2, that is pi by 4 into log of 2. The left hand side is 2i, so I is equal to pi by 8 log of 2. Okay, so in this way you can use your property number 6th, that is integration from 0 to a f of x dx is equal to integration from 0 to a f of a minus x dx. Answer is pi by 8 log of 2 into pi by 8 into log of 2. Okay, क्लियर, आगे समझ में? सो इस तरीके से आप ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो. योर प्रॉपर्टी दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a of f of x dx is equal to integration from 0 to a of f of a minus x dx. Clear? So students, please make a note. This is your property number 6th.